Today's topic is while statement. Earlier we have discussed while statement. The main topic is looping in C language. तो हमने पिछले दो क्लासेस में ये देखा कि लूप होता क्या है और कैसे आप लूप को बना सकते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि लूपिंग एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सभी लैंग्वेजेस में इस्तेमाल किया जाता है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि whenever we have to repeat set of instruction we require a looping statement. So this is the third statement we are discussing right now, that is do while statement. Right, this is do while statement. Now do while statement का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, it is bottom tested or we can call it exit control loop. Right, we can call it exit control loop. इसको exit control loop या bottom tested भी हम कहेंगे. bottom tested क्यों कह रहे हैं? तो अगर हम सिंटैक्स को देखेंगे अभी राइट नाउ तो हमें आइडिया हो गया बॉटम टेस्टेड क्यों कहा जाता है इन लूप्स को. तो हम समझ रहे हैं कि सिंटैक्स क्या है इसका. सिंटैक्स do then can have set of statements. Well, suppose we have statement 1, then we can have statement 2 and so on. We can have many statements. But then we will have basically the test condition here and then semicolon. Why we are having semicolon? Because the statement ends here, that is last part of the statement, and as we know that we have to terminate every statement with a semicolon. Right, so these are the statements which is going to be repeated. ये जो statements होंगे वो क्या होंगे? Repeat होंगे. These are the statement will get repeated. Right, how many times depends on the test condition. Right, now important points. First, for executing a loop, the test condition must be true. That is the first thing we have to remember. Second, for termination, the test condition must become false. This is a requirement. So these are 2 points we have to remember whenever we have to create a loop. So for executing a loop, if you are using any looping statement, चाहे for इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे while कर रहे हैं, चाहे do while कर रहे हैं, तीनों केसेस में कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है लूप चलाने के लिए. और ये भी ध्यान रखना है कि जब हम लूप को ख़त्म
कब कर सकते हैं? जब कंडीशन फॉल्स होगी। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है जब भी हम लूप क्रिएट करें। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा लूप एंडलेस चले। द लूप शुड नॉट रन फॉर एवर। ऐसा नहीं कि लूप चलता रहे, कभी ख़त्म ना हो। ये हमें ध्यान में रखना है जब भी हम लूप क्रिएट कर रहे हैं। तो वी आर टेकिंग वन प्रॉब्लम टू राइट a program to print a name 10 times. Already we have done this problem. ये हम already पहले कर चुके हैं। हमने for से भी इसको किया, while से भी किया। अब हम इसको do while से करके देखते हैं कि हम कैसे इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं, राइट। तो उसका मैं एक रफ स्केच बना के आपको दिखा रहा हूँ कैसे हम बनाएंगे इसको। तो we have a variable, suppose I here, then we are creating a loop while using suppose do while, then we have do, then you can have 0 here if you want. You can have any value, depends on how you are creating a loop. कैसे लूप बना रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कैसे करेंगे। तो I is equal to I plus 1, then printf, that is your name, suppose Priyanshu, y. This is a y. I less than equal to 10. So this is a program. It is not a complete program, but it is a part of a program. How the program will look like. Program कैसे दिखेगा, कैसे लिखना है। तो आप initialize कर रहे हैं, you are incrementing the I, you are printing the message Priyanshu. Then this loop will run how many times? 10 times, because as soon as suppose I less than equal to 10, what will happen in this case? I initially I1, then 2, then 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Then suppose if you are having this 10, so when the condition I is 10, the condition is still true and will go into the loop. So what should be the condition here? We can have I less than equal to 10, right? In this way, this program is going to work normally. And now we will run this program using code block, right? Wait for that. अब हम देखेंगे कि इसका प्रोग्राम कोड ब्लॉक पे कैसे बनाते हैं हम लोग। तो न्यू करें आप एंड सेलेक्ट your empty file, start typing your program, hash include stdio.h, then int main, then int r0, then do the statement I is equal to I plus 1, then printf Priyanshu string \n, then your condition while I less than 10 and so on. And return 0. I will zoom this program so you can clearly see what we have written here. आपको दिखाई देगा क्या लिखा गया है। वो ज़रूरी है आप इसको देख सकें। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ।
यहाँ पे डू वाइल, ये आपका डू, इसकी बॉडी में दो स्टेटमेंट है, आई जो i+1 और प्रिंट है प्रियांशु सिंह। ये दोनों रिपीट होंगे हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स। अब टेस्ट कंडीशन क्या, i<10। अब इसको हमने कहा था बॉटम टेस्टेड या एग्जिट कंट्रोल लूप। क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो बॉटम में है, जबकि वाइल में क्या था, वाइल में कंडीशन टॉप पे थी। तो वो वाइल जो है वो टॉप टेस्टेड है, या इसको हम कहते हैं एंटी कंट्रोल लूप, और डू वाइल को हम कहते हैं इट इज बॉटम कंट्रोल्ड या बॉटम टेस्टेड या एग्जिट कंट्रोल लूप। इज दैट क्लियर? तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हम इसे लूप बना सकते हैं। नाउ वी वांट टू सेव दिस प्रोग्राम विथ नेम to while 1. You can give any name. I am putting to while 1 here, .c, right? Then I will compile this program, and compilation is done here. There are no error, no warning. I want to run this program. Just wait for the output here. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 times we are having प्रियांशु सिंह। आई एम जस्ट इसको मैं जूम कर रहा हूँ जिससे कि आपको आउटपुट दिख सके। यू कैन सी द आउटपुट हियर। यहाँ पे आप देख लें इस आउटपुट को, तो प्रियांशु सिंह 10 टाइम्स प्रिंट हुआ है। इज दैट क्लियर? ये एक प्रोग्राम था जिससे हमने समझा कि हम डू वाइल से भी लूप क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम डू वाइल से एक प्रोग्राम और करके देखते हैं, जिससे हमें डू वाइल और ज़्यादा समझ में आए कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है डू वाइल। तो प्रॉब्लम हमारे पास है कि वी हैव टू रीड ए नंबर एंड वी हैव टू चेक वेदर द नंबर इज़ ए पैलिंड्रोम और नॉट। अब ये पैलिंड्रोम क्या होता है, लाइक सपोज हिंदी में हम कहते हैं डालडा, तो आप लेफ़्ट टू राइट लिखे या राइट टू लेफ़्ट लिखे वही शब्द आता है, वही वर्ड आएगा। या इंग्लिश में हम कहते हैं मलयालम, तो जो उसकी स्पेलिंग है इफ यू राइट टू लेफ़्ट तो राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट सेम आए। ऐसे नंबर्स के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि जो नंबर हमने रीड किया है क्या वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें प्रोग्राम कर रहे हैं। फाइन, तो प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए हैश इंक्लूड stdio.h, then int main, then we have to declare few variables, like suppose num is a variable in which we will read number, then the sum for summation, then the pnum where we will store the entered num so that we have to compare later on, and x where we will have a remainder, right? तो first क्या करना हमें, we have to read a number. For that you have to print a message, enter a number, एक मैसेज आप प्रिंट करेंगे। उसके बाद स्कैनफ का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम बार बार कह रहे हैं स्कैनफ का क्या इस्तेमाल है। इट इज़ यूज टू, किस काम के लिए भाई, इट इज यूज टू रीड ए नंबर एट रन टाइम। जब प्रोग्राम को आप रन करते हैं तब आपको अगर नंबर पढ़ना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, आप स्कैनफ का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ पहला काम क्या कर रहे हैं, लूप की बॉडी के अंदर आपको राइट की तरफ से डिजिट क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये क्या करना है, आपको मॉडुलस ऑपरेटर प्रयोग में लेना है, दैट इज दिस परसेंटेज ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑपरेटर, एंड यू डिवाइड इट द नंबर बाय 10। तो इससे क्या होगा, आपका राइट मोस्ट डिजिट निकल जाएगा एंड दैट विल बी प्लेस्ड वेयर इन एक्स में, वो आप स्टोर कर लेंगे। अब क्या करना है, जो भी आपके पास
सम है जो वेरिएबल था आपके पास है, तो आप क्या कर रहे हैं, सम इंटू, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस सम, जो भी हम सम कर रहे हैं, या आपको यू कैन गिव एनी नेम टू दिस वेरिएबल, तो व्हाट यू हैव टू डू, you have to multiply it by 10 and you have to add this remainder which you have in x. For example, we will just go through the example later on. Then num equals to num divided by 10. अब क्या कर रहे हैं हम, जब हमने वो डिजिट जो राइट साइड से निकाल लिया है, तो अब नेक्स्ट टाइम पे जो नंबर है उसमें वो राइट डिजिट नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स वो डिजिट नंबर में से हट जाना चाहिए. फॉर एग्जांपल आपने 313 डाला, तो नम में क्या 313 है, यू हैव, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे मॉडल्स ऑपरेटर से डिवाइड किया उस नंबर को यूजिंग 10, व्हाट यू विल हैव, 3 रिमाइंडर बचेगा आपके पास. और क्या चाहिए फिर आपके पास, यहाँ पे जो तीसरा स्टेप है, तो 313 डिवाइड बाई 10 हमने कहा था, यहाँ इंटीरियर डिवीजन होगा एंड 0.3 31.3 आंसर आएगा, तो 0.3 इग्नोर हो जाएगा एंड 31 विल बी स्टोर्ड इन नम. तो नेक्स्ट टाइम पे नम की वैल्यू क्या होगी, इट विल नॉट बी 313, इट विल बी 31, राइट. अब यहाँ पे आप फाइनली क्या करेंगे, इफ, जैसे लूप खत्म होगा, इफ पी नम इक्वल्स टू सम, अगर ये है पी नम क्या है, जिसमें हम पी नम में हम स्टोर नहीं किया हमने, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वी हैव टू स्टोर दैट नम टू पी नम. तो उस नम को हमने पहले पी नम में क्या किया है, स्टोर किया है, हमने इसको यहाँ से लेना पड़ेगा, हमें इधर प्लेस हियर आफ्टर रीडिंग द नंबर, राइट. रीडिंग नंबर के बाद ही करेंगे इसको हम लोग. अगर आपका पेनम सम है, अगर ये सेम है, तो इसका मतलब क्या है, आपका नंबर क्या है, पैलिंड्रोम है. नंबर इज palindrome. Else enter quotation, number is not palindrome, right. And finally return 0. This will be the case, right. If you save this program with a name, suppose name हमने चेक किया, we have palin C, then compile your program. The program has been compiled, so some error is there, error, where the error, the bracket आपका यहाँ से remove हो गया था, that was the error. So saving the program again, we are compiling it. If pnum equals to sum, हाँ, हमने यहाँ पे क्या नहीं किया है, हमने वाइल नहीं लिया था, ये हमने गलती की, वो हम ग्रेटर देन, इसलिए वो एरर वहाँ पे आ रही थी, नम ग्रेटर देन 0, राइट. सेव द प्रोग्राम, compile it. Now there is no error, you find at the bottom there is no error. जूम करके देखें प्रोग्राम को आप, यहाँ पे. Now this is a complete program. Before running or executing a program, so what you have done, you declared some variables, you have asked for the number, then you have stored that number to another variable called pnum, because later on this num is going to be compared with the sum, right.
एंड इफ वी हैव नॉट स्टोर्ड जो num to p num में स्टोर नहीं कर रहे हैं तो होगा क्या, प्रॉब्लम क्या आएगी इससे, क्योंकि नम धीरे करके जब लूप खत्म होगा नम 0 हो चुका होगा, तो हम ओरिजिनल नम हमारे पास लॉस्ट हो चुका है, इसलिए हमें क्या चाहिए, हम नम को कहाँ स्टोर कर रहे हैं, पी नम में स्टोर कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ रहा है, या मल्टीप्लाइंग सम इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, सपोज 353 है तो 0 इंटू 10, इनिशियली सम 0 है तो प्लस 3 हो जाएगा सम, नेक्स्ट टाइम पे 3 इंटू 10 30 प्लस 1 31 एंड सो ऑन। And if you run this program, now we will run this program and we'll check that whether the entered number is a palindrome or not. So we will run this program. We are going to enter a number that is 313 and the answer should be, it is a palindrome. So we got the answer, the number is palindrome. मैं आपको मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि 313 एंड नंबर इज palindrome. फाइन. नाउ दिस इज वन केस. सेकेंड केस, where we will enter a number, and in this case it will give the answer number is not a palindrome, right? Because 342, if you write the number from right to left, it will be 243, which is not equal to 342. That's why it is not a palindrome. Fine. तो ये हमने समझा कि डू व्हाइल लूप से भी हम लूपिंग कर सकते हैं, और हमने कहा ये बॉटम टेस्टेड है, एग्जिट कंट्रोल लूप है, जबकि आपने वाइल देखा, वाइल क्या था भाई, वो टॉप टेस्टेड था, या हम कह रहे हैं एंट्री कंट्रोल लूप था, राइट? तो अब डू व्हाइल में आप देखेंगे एक चीज़ और, कि डू व्हाइल में लूप एक बार तो रन होगा ही होगा, बिकॉज आप देखें कि यहाँ पर कि कंडीशन कहाँ पर है, कंडीशन बॉटम पर है, कंडीशन यहाँ पे है, कंडीशन ये है। तो यहाँ पे आने के लिए जो भी डू और वाइल के बीच में जितने भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे ही, चाहे कंडीशन पहले बार में फॉल्स क्यों ना हो। तो इट मीन्स एक बार तो इसमें ये एग्जीक्यूट क्या होंगे, ये स्टेटमेंट एक बार तो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे, राइट? बट इन केस ऑफ वाइल पहले कंडीशन है, टॉप टेस्टेड है, तो पहले कंडीशन टेस्ट होगी, फिर लूप की बॉडी में एंटर करेगा। तो अगर पहली बार में कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में लूप नहीं चलेगा। किस केस में? वाइल के केस में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है नेस्टेड लूप्स।